بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم۔ لائف لائٹ میں خوش آمدید۔ زندگی کے لیے 7 مفت مشورے۔ ہر نیا دن ایک مصیبت کا آغاز ہوتا ہے یا رحمت کا۔ اس بات کا انحصار اس بات پر ہے کہ آپ کے پاس کتنی دولت ہے، مگر کیا محض دولت کا ہونا کافی ہے؟ جی نہیں، میں آپ کو اس قسم کی باتیں سنا کر بور نہیں کروں گا۔ زندگی میں پیسہ ہی سب کچھ نہیں، بلکہ اصل چیز انسان کا اخلاق ہے۔ پیسے سے خوشی نہیں خریدی جا سکتی۔ غریب آدمی رات سکون کی نیند سوتا ہے، امیر کو اپنی دولت کی فکر رہتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ دراصل یہ افیون کی گولیاں دولت مند افراد ان لوگوں کو دیتے ہیں جو ان کی دولت سے حسد کرتے ہیں۔ اگر ایسی بات نہ ہوتی تو دنیا کے تمام امیر لوگ سکون کی نیند کے عوض اپنی دولت کسی مطمئن غریب سے تبدیل کروا لیتے۔ کچھ باتیں البتہ امیروں، غریبوں اور سفید پوشوں کی زندگی میں مشترک ہوتی ہیں۔ ہر کسی کا ان سے واسطہ پڑتا ہے۔ ان باتوں کا کوئی لگا بندھا اصول نہیں، کوئی گھڑا گھڑایا حل نہیں۔ وقت اور تجربے کے ساتھ ہر انسان یہ باتیں سیکھتا ہے۔ انہیں آپ درس حیات یا لائف لیسنز بھی کہہ سکتے ہیں۔ آج میں زندگی کے چند اسباق آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلا سبق یہ ہے کہ صحت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ اگر آپ صحت مند ہیں تو پھر دولت بھی کما لیں گے، حاسدین سے بھی نمٹ لیں گے، زندگی کی دوڑ بھی جیت لیں گے، خوشیاں بھی سمیٹ سکیں گے۔ اگر صحت نہیں تو پھر یہ سب بیکار ہے، پھر عہدہ، شہرت، امارت کسی کام کے نہیں۔ ایک بیمار شخص کو صحت مند دنیا زہر لگتی ہے۔ اسے لگتا ہے جیسے ہنستے کھیلتے لوگ اس کا مذاق اڑا رہے ہوں۔ بے شک بیماری پر کسی کا زور نہیں۔ ہم میں سے کوئی بھی کسی وقت بھی بیمار ہو سکتا ہے، مگر صحت کا خیال رکھنا ہمارے اپنے ہے۔ بد احتیاطیوں اور بد پرہیزیوں سے اجتناب ہمارے اختیار میں ہے۔ ہم اتنے بھی مجبور نہیں کہ 8 ڈبل روٹیوں والے سینڈوچ کو انکار نہ کر سکیں جو پیٹ میں جا کر سائیکل کی گردش کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ رہی بات یہ کہ صحت کا خیال کیسے رکھا جائے، تو اس کے لیے دنیا جہان کا مواد انٹرنیٹ پر دستیاب ہے۔ روزانہ 10 گلاس پانی پینے سے لے کر 20 منٹ واک کرنے تک فقط عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ زندگی آپ نے اکیلے گزارنی ہے۔ اس کی مشکلات کا تنہا سامنا کرنا ہے، اس کی آزمائشوں سے خود ہی نمٹنا ہے۔ آپ کے ماں باپ، بہن بھائی، اولاد، دوست احباب ضرور آپ کا ساتھ دیں گے، مگر جو تکلیف، پریشانی یا تناؤ آپ کے حصے میں آئے گا وہ آپ ہی کو سہنا پڑے گا۔ یہ بات جتنی جلد سمجھ آ جائے اتنا ہی اچھا ہے۔ اگر آپ کے دوست رشتہ دار آپ سے مخلص ہیں تو آپ ایک خوش قسمت انسان ہیں، یہ آپ کی پریشانی میں کمی کا سبب بنیں گے۔ ایسے لوگوں کی فہرست بنائیں۔ اگر تعداد 5 سے زیادہ نکلے تو خود کو دنیا کا سب سے دولت مند شخص سمجھیں۔ دوسرے درجے میں ان لوگوں کو رکھیں جو یوں تو آپ کے خیر خواہ ہیں مگر برے وقت میں سوائے اظہار افسوس کے کچھ نہیں کر سکتے۔ فی زمانہ یہ بھی غنیمت ہے کہ ہر کسی کی زندگی بہت مصروف اور کٹھن ہو چکی ہے۔ تیسرے درجے میں وہ لوگ آتے ہیں جو آپ سے منافقانہ تعلق رکھتے ہیں، ان سے محتاط رہیں۔ تیسرا سبق یہ ہے کہ لوگوں کو اسی پیمانے پر پرکھیں جس پیمانے پر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو پرکھیں۔ اگر آپ کا کوئی دوست بنیادی طور پر ایک اچھا انسان ہے، آپ کا مخلص اور خیر خواہ ہے، تو یہ خوبی بہت ہے۔ آپ کی یہ توقع نہیں ہونی چاہیے کہ اس کے کپڑوں کا ذوق بھی اعلیٰ ہو، وہ ڈنر کے ادب آداب سے کسی نجیب زادے کی طرح واقف ہو اور اس کا علم و مطالعہ بھی وسیع ہو۔ ہر شخص میں ہر خوبی نہیں ہوتی، بلکہ اسی طرح جس طرح ہم میں ہر خوبی نہیں۔ دنیا میں اچھے انسانوں کا قحط ہے، سو اگر آپ کو کسی اچھے انسان کی صحبت میسر آئے تو اس کا فائدہ اٹھائیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے تعلق خراب نہ کریں۔ بعض اوقات آپ ہر ہاتھ ملانے والے کو اپنا اتحادی سمجھ لیتے ہیں اور ہر اجنبی کو ناقابل اعتماد۔ ضروری نہیں کہ ایسا ہو۔ لوگوں کو ان کے بلند بانگ دعووں کی روشنی میں نہیں بلکہ ان کے اعمال کی روشنی میں جانچیں۔ زندگی ہمیں اکثر حیران کرتی ہے جب ہمیں وہاں سے کمک ملتی ہے جہاں سے ہمیں ایسی کوئی امید ہی نہیں ہوتی، اور وہاں سے گزند پہنچتی ہے جہاں سے نقصان کا ہم نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ ہر انسان دوسرے سے مختلف ہے۔ جس طرح 2 لوگ ایک ہی قسم کے ماحول میں یکسر مختلف انداز میں اپنا رد عمل دیتے ہیں، اسی طرح ہر شخص کا مختلف معاملات میں مختلف رد عمل ہوتا ہے۔ اگر ہم کسی مسئلے کو اپنے نقطۂ نظر سے دیکھ رہے ہیں تو ضروری نہیں باقی لوگ بھی آپ ہی کے لینز سے اس مسئلے کو دیکھیں۔ لہٰذا لوگوں سے امید نہ رکھیں کہ وہ محض اس وجہ سے آپ سے اتفاق کر لیں گے کہ آپ درست ہیں اور وہ غلط۔ اسے چوتھا سبق سمجھیں۔
इंसानों को झूठ बोलने की आदत होती है। कुछ लोग बिला वजह झूठ बोलते हैं, कुछ महफिल में अहमियत हासिल करने के लिए, कुछ अपनी नाकामी छुपाने के लिए, कुछ शेखी बिगाड़ने के लिए, कुछ अपने फायदे के लिए, कुछ दूसरों के नुकसान और बदनामी के लिए, और कुछ महज आदतन झूठ बोलते हैं। लोगों की बातों पर एतबार करने से पहले इनके दावे को परख लें। जिन बातों के झूठ सच होने में कोई फर्क नहीं पड़ता, इन्हें बेशक नजरअंदाज कर दें, मगर जिन बातों की रोशनी में आपने अपनी जिंदगी का कोई फैसला करना है, इन्हें महज इस वजह से दुरुस्त ना मान लें कि आपके किसी जानने वाले ने इस बाबत कोई बयान जारी कर दिया है। किसी के झूठ की वजह से अपनी जिंदगी का कोई फैसला गलत कर लेने का पछतावा बहुत बुरा होता है। इस पछतावे से बचना आपके अपने हाथ में है। ये 5वां सबक था। जिंदगी में कोई क्लीन चिट नहीं होती, कोई गारंटी नहीं होती और कोई ऐसी जमानत नहीं होती जिसके मिलने के बाद आप समझें कि अब कोई परेशानी या तकलीफ नहीं आएगी। अब मैंने इतनी दौलत कमा ली है कि अब कोई टेंशन नहीं। शायद इक्का दुक्का लोगों के बारे में ये बात दुरुस्त हो, मगर अक्सरियत के बारे में जिंदगी संग दिली से ही काम लेती है। लिहाजा ये सोच दिमाग से निकाल दें कि कोई ऐसा नुस्खा आपको मिल जाएगा जिससे आपकी जिंदगी की तमाम मुश्किलात हल हो जाएंगी। जो इंसान हमें आसूदा और मुतमईन नजर आते हैं, इनकी जिंदगी की तमाम मुश्किलात हल नहीं होती, बल्कि इनमें मुश्किलात से निमटने की हिम्मत और हौसला होता है। छठा सबक यही है कि जिंदगी में कोई क्लीन चिट तलाश करने की बजाय खुद में वो सलाहियत पैदा की जाए जो जिंदगी की परेशानियों से निमटने में काम आए। जिंदगी का 7वां सबक, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, शायद ये मुमकिन है, नहीं ये नामुमकिन है। अगर कभी ऐसा हो गया तो और अगर ना हुआ तो। ये है आजकल की दुनिया जिसमें हम जी रहे हैं। जिंदगी का 7वां सबक, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, शायद ये मुमकिन नहीं ये नामुमकिन है। अगर कभी ऐसा हो गया तो और अगर ना हुआ तो। ये है आजकल की दुनिया जिसमें हम जी रहे हैं, वहम और शक के साए में, मुस्तकबिल के खौफ में, गुमगू के आलम में। हम रोजाना अपनी जिंदगियों के फैसले करते हैं, कुछ चीजों का चुनाव करते हैं, कुछ बातों को रद्द करते हैं और फिर सोचते हैं कि कहीं हमने कोई गलत फैसला तो नहीं कर लिया। आप इस बात का फैसला कैसे हो कि यही बेहतरीन फैसला था, और अगर हमारा फैसला गलत साबित हो गया तो इसके क्या नताइज होंगे। कहीं ऐसा हो गया तो क्या होगा, कहीं वैसा हो गया तो क्या होगा। ये अनजाना खौफ इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। हालांकि जिंदगी में 80% बातें जिनके बारे में हम सोचकर हलकान होते हैं कभी वकूअ पजीर ही नहीं होती, और बाकी 20% से हम रो पीट कर निमट ही लेते हैं। आजकल की जिंदगी बेहद पेचीदा हो चुकी है। नित नए इम्कानात ने इसे सहल बनाने के साथ साथ गंभीर भी बना दिया है। कहाँ से क्या चीज खरीदनी है, क्या ओढ़ना है, क्या बिछोना है, कहाँ जाना है, कहाँ की सैर करनी है, क्या खाना है, क्या पीना है, हर बात में चूंकि चॉइस लामहदूद है, सो फैसला भी मुश्किल हो गया है। ऐसे में 7वां सबक यही है कि अपनी जिंदगी को सादा रखें, मुस्तकबिल के अनदेखे खौफ के आलम से बाहर निकलें। गैब का इल्म सिवाय अल्लाह के किसी को नहीं, तवहुमात को दिमाग से बाहर निकाल फेंकें। ऐसे में 7वां सबक यही है कि अपनी जिंदगी को सादा रखें, मुस्तकबिल के अनदेखे खौफ के आलम से बाहर निकलें। गैब का इल्म सिवाय अल्लाह के किसी को नहीं, तवहुमात को दिमाग से बाहर निकाल फेंकें। इस दुनिया में किसी के पास कोई ऐसी गीदड़ सिंगी नहीं जो आपको हमेशा के लिए तमाम तफक्कुरात से निजात दिला दे। नाम निहाद पीरों, फकीरों, बाबों, मुजावरों, दरबारों, तावीज गंडों से कोई काम नहीं निकलेगा। फकत आपका वक्त और पैसा जाय होगा। जितनी जल्दी ये बात समझ आएगी, इतनी जल्दी जिंदगी सहल हो जाएगी। अगर इस बात को समझने में दिक्कत पेश आए तो उन लोगों की जिंदगियों का मुशाहिदा करें जो आपके दुख दर्द का इलाज जादू टोने, अमलियात और तावीज गंडों के जरिए करने का दावा करते हैं। जब ये लोग खुद बीमार पड़ते हैं तो क्या तावीज और वजीफों से अपना इलाज करते हैं या अस्पताल में जाकर दिल में स्टेंट डलवाते हैं? इस सवाल का जवाब तलाश करें और अपनी जिंदगी से अनदेखे वहम और खौफ को बाहर निकाल फेंकें। लम्हे मौजूद का लुत्फ उठाएं, कल किसी ने नहीं देखा और माजी का आप कुछ बिगाड़ नहीं सकते। लिहाजा खुदा ने अगर मौका और इस्ताअत दी है तो इसकी खूबसूरत दुनिया देखें, लोगों से मिलें, इनसे बातें करें। हर इंसान के पास कोई न कोई एक ऐसी खूबी जरूर होती है जो आपके इल्म में इजाफे का बाइस बन सकती है। इंसानों से इनकी खूबियां जानने की कोशिश करें, किताबें पढ़ें, फिल्में देखें, सेहतमंद खुराक खाएं, खुशबू लगाएं, अच्छा लिबास पहनें। इसके लिए जरूरी नहीं कि आप रोजाना नया सूट बदलें। 2 सूटों, 3 शर्टों और 10 टाइयों के साथ भी आप खुश लिबासी का मुजाहिरा कर सकते हैं।
जो कपड़े आपने गुज़िश्ता 2 बरस में इस्तेमाल नहीं किए, इन्हें एक थैले में सलीके से समेट कर उन लोगों को दे दें जिन्हें इनकी जरूरत है। अपनी जिंदगी में से कुछ वक्त रज़ाकाराना कामों के लिए निकालें। ये वक्त किसी स्कूल में बच्चों की तरबियत पर सर्फ किया जा सकता है, किसी अस्पताल में मरीज की तीमारदारी पर खर्च किया जा सकता है, या किसी भी ऐसे गैर मुनाफा बख्श काम में जिससे फर्द या मुआशरे का भला हो सके। जिंदगी को आसान और सादा जरूर रखें, मगर साथ ही दुनिया के बदलते हुए रंग ढंग से भी आगाही रखें। वो दौर गुजर गया जब हमारे बाबे मुतकब्बिराना लापरवाही से ये कहकर हमें हैरान कर दिया करते थे कि वो मोबाइल फोन इस्तेमाल नहीं करते। ये दुनिया हमारी सोच से भी ज्यादा तेजी से तब्दील हो रही है। इस बदलती दुनिया में रोजाना हजारों नई चीजें वजूद में आ रही हैं। ज्यादातर लोगों को इस तब्दीली का एहसास नहीं। ये लोग अब भी इसी दौर में जी रहे हैं जिसमें इंटरनेट पर खरीदारी को फ्रॉड और प्राइवेसी यानी कि राजदारी को खराफात समझा जाता था। आज जो शख्स जिंदगी के इन जदीद तौर तरीकों से वाकिफियत नहीं रखेगा, वो नुकसान उठाएगा। सादा जिंदगी का ये मतलब नहीं कि आप किसी साधु का लिबादा ओढ़ कर जंगलों में जा बसें। सादा और पुरकैफ जिंदगी इसी सूरत मुमकिन है अगर आप जदीद रुझानात पर नजर रखें, नई इजादात से फायदा उठाएं और अपने आप को बदलते हुए वक्त के मुताबिक ढाल लें। इस तेज रफ्तार जिंदगी में मैकेनिकी आलात यानी गैजेट्स के बगैर जिंदा रहने की कोशिश करना ऐसे ही है जैसे कोई बगैर ऑक्सीजन के को हिमालय सर करने की कोशिश करे। जिंदगी को सादा बनाना है, अजियतनाक नहीं। सादा जिंदगी का उसूल ये भी है कि अगर अल्लाह ने 4 पैसे दिए हैं तो इनका दुरुस्त इस्तेमाल करें, और अगर नहीं दिए तो पैसे कमाएं, क्योंकि पैसों के बगैर फी जमाना सादा जिंदगी का तस्वुर भी मुमकिन नहीं। चाहे जाए कि आसूदा जिंदगी की ख्वाहिश की जाए। पैसे जरूर कमाएं मगर मालो मता की हविस ना हो। आसाइशें जरूर खरीदें मगर उनके लिए अपनी और दूसरों की जिंदगी अजीरन ना करें। बिल्कुल ही मादा परस्त ना हो जाएं। गैर जरूरी बखेड़ों में ना उलझें, मगर इसका ये मतलब भी नहीं कि हक सच का साथ ना दें। सादा जिंदगी और किसी जानवर की जिंदगी में फर्क होता है। जिंदगी में जिन लोगों का कोई नजरिया नहीं होता, जिनके नजदीक अखलाकी अक़दार की कोई अहमियत नहीं होती और जिनकी लुगत में हक और इंसाफ के मायने दौलत और ताकत के होते हैं, इनमें और वैसी दरिंदों में कोई फर्क नहीं होता। ऐसी जिंदगी गुजारने वालों से दूर रहें।